this online platform. Welcome, ma'am. Yes, the Department of Economics is welcoming all the dignitaries and the scholars, the faculties from different departments, different cities, and states across the nation. We can start by around 4 o'clock, ma'am, and in the meantime, we can just give a just backdrop of what we have been doing and we have thought of the plan just so Anjali, to initiate with Okay, just like to ways that we are that is enriching this 20 of topics, and it is a very it is there is some echo. I think there's some echo at the background. Those who have opened the mic can please mute themselves so that the voice can become more clear. As we are here and taking a go to 7 states, 7 will be joining us and blessing us with their knowledge. So we are on the of the Amrit Kalka Amrit Sapta, and I think it is 4 o'clock, so I will be starting it formally. Yeah, please, Dr. Anjali, please invite formally now people of the day. It is already 4 o'clock, so we can initiate with the program now. Okay. So a very good evening to everyone. I, Dr. Anjali Singh, on behalf of the Department of Economics, welcome you all. And I can see the online lecture series, and we have the eminent speaker, Professor Kanhaiya Ahuja. He's Director, School of Economics, IIB University, Indore, and we have reached on by online Madhya Pradesh. Sir is going to speak about India's journey for self-reliance. So I feel privileged to welcome you all the 6th day of Amrit Kalka Amrit Saptah. And as I can observe that there are some honored guests consistently joined us and sparing time to grace this online event. I welcome them also. And so, without further ado, I would like to invite Prakriti to let us know about the speaker. Over to Prakriti. Thank you, ma'am. We extend a warm welcome to Professor Kanhaiya Ahuja, a beacon of knowledge and leadership in the field of economics and academia. Currently holding the esteemed position of professor at the School of Economics and Dean of Faculty of Social Sciences at Devi Ahilya University, Indore. Professor Kanhaiya Ahuja's contribution have left an indelible mark on education and research. Professor Ahuja is a key member, was a key member, of the task force appointed by Government of Madhya Pradesh to enhance the state. Furthermore, his membership in the G20 University Connect Steering Committee representing the Ministry of External Affairs, Government of India, reflects his influence at international stage. His exceptional leadership is evident as managing editor of the Journal of Madhya Pradesh Economics Association and his pivotal role in UGC initiatives such as the Special Assistance Program and Center with Potential for Excellence in Particular Area CPEPA Social Sciences. As an eloquent speaker, he has delivered numerous keynote addresses at international and national seminars, shaping discussions on research methodologies, human resource development, skill development, and more. His diligent dedications shines through his successful coordination of research projects, development of excellence centers, and establishment of research chairs in economics. We once again welcome you, sir. Thank you so much, Prakriti. And now I would request Professor Kanhaiya Ahuja ji, kindly proceed for your lecture, sir. Good afternoon, everybody. It's an honor for me to be the part of this 7-day online lecture series on a wonderful topic,
Amrit Kal ka Amrit Sapsa and a pathway to India at the rate towards 100. It's a wonderful topic, and I feel privileged to be the part of this such a prestigious university, Department of Economics. I congratulate Department of Economics for hosting such a wonderful lecture series, and I would like to extend my thanks to Honorable Vice Chancellor Professor R.K.P. Singh for this wonderful gesture. Also, the convener Anamika Chaudhary ma'am, who has been the key instrument and constantly she has been she has been in touch with me, and I extend my thanks to Anamika ma'am for this invite. Coordinator Dr. R.K. Sinha ji, moderator Dr. Narendra Kumar ji, Dr. Anjali ma'am for introducing me, and Prakriti Shukla for briefing my introduction. So it's an honor for me to be the part of such a wonderful lecture series. मुझे कहा गया कि बाई लैंग्वेज में बोलना है तो मैं दोनों लैंग्वेज में बात करता हूँ. My topic for discussion would be, and also I would like to, I feel so privileged to be the part of such a wonderful forum where Professor Sudhakar Pandya Sahab, Professor P.K. Ghosh Sahab, and Manisha Dubey ma'am, Nishan Barua Sahab, and Neena Malhotra Sahab have already spoken about, and I feel privileged that Professor P.K. Ghosh is right now in the audience right now. So it's an honor for me to be the part of such a wonderful audience, Now, I'll be talking about India's journey for self-reliant economy. भारत ने किस तरह सेल्फ रिलायंस सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की तरफ भारत कैसे बढ़ रहा है, उस पर मेरा फोकस रहेगा. बट ब्रीफली आई वुड लाइक टू टेक यू into the history after independence. यदि मुझे ये बताना है कि आज भारत किस स्थिति में है, तो it is very important for me to talk about what was the situation of India at the time of independence. At the time of independence, if I talk about economy, we had a very low per capita income. We had a high rate of population growth in the country. We were suffering. We already had mass poverty in the in our country, and even occupational structure was was also unbalanced at the time. High level of illiteracy was there in the economy, in the system, and at the same time we were struggling to have a basic amenities of basic medical amenities, basic amenities which are required to live our life, and even industrial growth was very, very low. We had a very, very backward economy. People were struggling to find the food. Scarcity of food was there. Raw material industry को जो raw material चाहिए था वो हमारे पास नहीं था. And there was so lot of issues with regard to social and economic platforms also. So these were the things. And at the same time, जब हम आजाद हुए तो जो हमारी population थी उसकी बहुत expectation हुआ करती थी गवर्नमेंट से. जब हम पहली बार हमने देखा कि at the time of 47, 50s के बीच में lot of expectations were there because we were independent nation at that time. And there was a lot of pressure कि हमें इस तरह की इकोनॉमी को जो थी बैकवर्ड, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत लो स्टेज में है, एग्रीकल्चर ग्रोथ है ही नहीं, इस तरह की इकोनॉमी को आगे कैसे लेके जाएंगे, बिकॉज हमारी 70 to 80% पॉपुलेशन, मोर देन 80% पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. तो इस तरह की इकोनॉमी को किस तरह से आगे लेके जाएंगे व्हाट वाज रिक्वायर्ड. उस वक्त यदि हम सोचे कि उस तरह की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए हमें क्या जरूरत थी. हेलो, am I audible? You are audible, sir. There was someone who was unmute, I think, sir. Please continue, sir. What was needed? It was we wanted to accelerate economic growth. हमें accelerate करना था economic growth, तो हमें inequalities को कम करने का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा pressure था. हमें ये इस तरह का economic development का model चाहिए था जो सबको बराबर की opportunities provide करे. हमें regional development को भी आगे लेके जाना था. जो हमारे regions थे, छोटे-छोटे belts थे, गांव थे, जो हमारी छोटी-छोटी तहसीलें थी, उनको भी आगे लेके जाना था. And at the same time हमें unemployment को भी रिड्यूस करना था और इक्वालिटी और जस्टिस की तरफ हमें इकोनॉमी को लेके जाना था. एट द सेम टाइम देयर वाज अ प्रेशर टू इम्प्रूव हेल्थ, सैनिटेशन एंड एजुकेशन कंडीशंस इन द इकोनॉमी. सो ये हमारे पास एक तरह से प्रेशर था. और इसी को ध्यान में रखते हुए, इफ यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, सो मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट हमने जो प्लानिंग प्रोसेस चालू किया उसका पूरा का पूरा फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ पर था. उस पूरी प्लानिंग प्रोसेस का जो हमारा ग्रोथ जो फोकस था वो सेल्फ रिलायंस पे था, रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे था, रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज पे था, एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी पे था. यदि हम
उस वक्त हमने if you remember, we started with a 5-year plan. We started with the first 5-year plan in 1951, and later on हमारा 12th 5-year plan था 2012 से 2017 के बीच में रहा. Fine. और यदि इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हम ध्यान देखें कि किस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ हमें इस दौरान मिली, तो you'll find that हमें फर्स्ट ईयर 5-year प्लान में जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जो हमारी टारगेट्स थी उससे थोड़ा ज़्यादा थी. सेकंड 5-year प्लान में टारगेट और डिजायर्ड के बीच में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था. इस तरह से हमारे पास अलग अलग प्लान की अलग अलग इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे स्ट्रेटेजिक्स को फोकस करना नहीं है. हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इश्यूज को लेके आना है. यदि हम अपनी जर्नी को देखते हैं सिंस इंडिपेंडेंस टू 1980 तक का फेज को देखते हैं हम लोग, तो यू विल फाइंड दैट ये हमारा जो फेज था, इस फेज में हमारी जो पूरा का पूरा फोकस रहा है, हमने ये मान लिया था पब्लिक सेक्टर इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ आवर नीड्स. पब्लिक सेक्टर पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी. प्राइवेट सेक्टर को हमने एक तरह से लाइसेंस बाद में बांध करके रख दिया था कि नहीं, दैट वाज कंप्लीटली कंट्रोल थ्रू लाइसेंसिंग पॉलिसी. वो हमारे लिए उस वक्त जो हमारे उस दौरान 1950 से 1980-90 तक का फेज देखेंगे, सो पब्लिक सेक्टर वाज गिवन द प्रायोरिटी एंड प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट गिवन द प्रायोरिटी एट ऑल. और इंपोर्ट लाइसेंसिंग पर हमारा पूरा फोकस था कि हमें इंपोर्ट कम से कम करने. उसका रीजन भी था, उसके पीछे एक ये भी सोच थी कि हमारे पास बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हुआ नहीं करता था. और हमारा पूरा फोकस इवन प्रोडक्शन में भी यू विल फाइंड दैट वी वर फोकसिंग मोर ऑन कंज्यूमर गुड्स. हमने कैपिटल गुड्स पे ज्यादा फोकस किया नहीं था. और दूसरी तरफ हमारे जो आसपास के एशियन कंट्रीज थे, आप पाएंगे दे वर फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ. और हम कहाँ फोकस कर रहे थे? हम कंज्यूमर गुड्स पे फोकस कर रहे थे. ये बहुत बड़ा अंतर है हम में और हमारे पड़ोसियों के बीच में, जो हमारे दूसरे नेशंस थे. उसकी तरफ यदि आप हमें टोटल यदि आप 19 तक आते, 1951 से आते आते 1985-86 तक जो हमारा ग्रोथ रेट था, दैट वाज स्ट्रगलिंग बिटवीन 3.5% टू 5.5%. एंड और 3.5 की परसेंट ग्रोथ रेट को जो आप जानते हैं, प्रोफेसर राजकृष्णा हैज बीन अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट फ्रॉम राजस्थान, एंड उन्होंने उसको हिंदू ग्रोथ रेट नाम दिया था. एंड आप 85 तक आते आते हमारी इकोनॉमी में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वी हैड एडवर्स फिस्कल डेफिसिट. हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा था, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड डबल डिजिट्स में हमारा उस वक्त फिस्कल डेफिसिट पहुंचा था. एंड वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कि पब्लिक सेक्टर जिस पर हमने बहुत भरोसा किया था, पब्लिक सेक्टर वाज नॉट एबल टू परफॉर्म एट ऑल. एंड वी वर स्ट्रगलिंग विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वी वर स्ट्रगलिंग विद हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो बोरोइंग्स पे बहुत ज़्यादा थी. इंटरनेशनल बोरोइंग फंड्स पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी. हमारे एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं थे, बहुत कम थे. हमारी डिपेंडेंसी पूरी इंपोर्ट्स पर थी. हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, आप में से बहुत सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को जानते होंगे, जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो भी बहुत तकलीफ वाला था, वो भी बहुत ज्यादा था. एंड हमारी पूरी की पूरी यदि हमारे लेबर फोर्स की स्ट्रक्चर को आप देखें, 90% ऑफ आवर लेबर फोर्स बिलोंग्स टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. और हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो हमने उस पर फोकस ही नहीं किया. और हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था. व्हेन वी टॉक अबाउट पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, we in terms of electricity, in terms of agriculture development, in terms of industries, in terms of drinking water, in terms of housing, in terms of irrigation facilities. So means we were not in a very very good situation. और एक दूसरा प्रेशर और था हमारे ऊपर. यदि 1951 से लेके अभी तक की हमारी जर्नी, 1951 से लेके 85-90 तक की जर्नी को देखेंगे, there was a debate which was going on in country, that was entitlement versus empowerment. Amartya Sen versus Jagdish Bhagwati. जो अमृता सेन थे वो इस थॉट के थे कि नहीं, हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, हमें प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल पे ध्यान देना चाहिए, हमें मैनकाइंड पे ध्यान देना चाहिए. और दूसरी तरफ भगवती प्रसाद वो कहते थे नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ would automatically take care of social infrastructure. So there was a debate between issue of entitlement and issue of empowerment. लेकिन धीरे धीरे हम एक ऐसी सिचुएशन में आए जिसने हमको बहुत मजबूर किया. वी ऑल नो हाउ द प्रोसेस ऑफ एलपीजी स्टार्टेड. हम बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास 89 में गए, हमें जब
अपने कुछ लोन्स को चुकाना था, फ्यूल जो हम जो फ्यूल्स वहां से मंगवाते थे उसका जब पेमेंट करने की बारी आई तो हमारे पास पेमेंट नहीं था। वी वेंट टू बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंग्लैंड रिफ्यूज टू गिव अस द लोन, और एंड दैट इज हाउ हमने अपना गोल्ड को मॉडरेट किया उस वक्त। ये एक हिस्ट्री है, वी ऑल नो अबाउट दैट, एंड दैट इज हाउ वी शिफ्टेड फ्रॉम द क्लोज इकोनॉमी टू द ओपन इकोनॉमी, एंड दैट इज हाउ वी स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ एलपीजी, जिसमें हमें मजबूर किया गया। IMF was the one who really forced us कि हमें LPG की तरफ जाना चाहिए, and we should also make private sector as a partner of our growth। अभी तक हम पूरा का पूरा फोकस हमारा पब्लिक सेक्टर पे हुआ करता था कि पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करेंगी। हमने 1991 के बाद जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए तो वी रियलाइज दैट नो, it is the private sector also which has to play a very very important role। और एक हमारी सोच में जो बदलाव आया 1991 से पहले, हमारी सोच हुआ करती थी एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम इंपोर्ट को कम करेंगे और एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। लेकिन 1991 के बाद में हमने जब एलपीजी मॉडल को फॉलो किया तो वी शिफ्टेड टू एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। दैट वाज द बिगेस्ट चेंज। और बोरोइंग फंडिंग जो हम करते थे, हम उधार लेके जो अपना विकास करते थे, हमने उस मॉडल को चेंज किया। हमने मल्टीनेशनल्स को बोला कि आप हमारे कंट्री में आइए, हमें फॉरेन कैपिटल की जरूरत थी तो हमने बोरो नहीं किया, हमने शिफ्ट अपने मॉडल को चेंज किया। नहीं, rather than borrow fund, let's invite direct foreign investment in our country। let the multinationals, हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, वो अपने प्लांट्स यहाँ स्टैब्लिश करेंगे इंडिया में, हमारे लोगों को रोजगार देंगे। इस तरह से हमारा इकोनॉमिक विकास का एक नया मॉडल डेवलप होगा। और उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज हमारी इकोनॉमी में आया जब हम 1995 में वी इमर्ज्ड, that is we became the founder member of WTO। और WTO को फाउंडर मेंबर बनने के बाद मार्केट इकोनॉमी, ग्लोबल लेवल पे मार्केट इकोनॉमी किस तरह से काम करती है, एक बहुत बड़ा चेंज आया ऑल ओवर वर्ल्ड। बिकॉज मार्केट, WTO को काम था ट्रेड लिबरलाइजेशन को बढ़ाना, इंटरनेशनल को प्रमोट करना और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंटैक्ट करना, उसको इंप्रूव करना। एंड इसी दौर में हमने शिफ्ट किया। वी शिफ्टेड फ्रॉम वी मेड अ शिफ्ट फ्रॉम फेरा टू फेमा आल्सो। बहुत सारे फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स भी हमने किए और हमारा पूरा अटेम्प्ट था कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। मल्टीनेशनल जब अपने प्लांट्स हमारा स्टार्ट करेगी तो हमारे लोगों को रोजगार देगी, और रादर देन बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड, उसका जो एक प्रेशर होता है कि हम बाहर से फंड जब बोरो करेंगे तो वी हैव टू रिटर्न बैक विद इंटरेस्ट, वो हमारा प्रेशर कम होगा और मल्टीनेशनल्स वुड कम एंड दे वुड पुट देयर प्लांट्स इन इंडिया, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और इस तरह से हमारा जो एक प्रेशर है जो इंटरेस्ट के साथ में मनी लुटाने का, वो हमारा कम होगा। और एक तरह से जब हम एम्प्लॉयमेंट opportunity जिस तरह से हमारे बढ़ेगी, so that's going to have an impact, that's going to have a conducive impact on standard of living। तो ये जो पूरी LPG पॉलिसी हमने 1991 के बाद जो फोकस किया, उसका पूरा का पूरा फोकस था कि इनकम लेवल्स को बढ़ाया जाए, पर कैपिटा इनकम्स बढ़नी चाहिए, इनोवेशंस बढ़ने चाहिए, टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ होना चाहिए। इससे पहले भारत में आप देखेंगे तो वी वर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन लेबर इंटेंसिव ग्रोथ। हमारा ग्रोथ का जो पूरा मॉडल था वो लेबर को फोकस पे था। लेकिन 1991 और 2002 के बाद यदि आप देखेंगे तो हमारे जो इकोनॉमिक मॉडल में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और जिसको मोदी गवर्नमेंट ने तो बहुत ज्यादा फोकस किया है। आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो पूरा का पूरा जो विकास का मॉडल है that is focused on innovations। technology and innovations have to play a very very crucial role। so इस तरह से लिविंग स्टैंडर्ड होगा, और पब्लिक सेक्टर का एक लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर is going to have a role, but at the same time private sector would play a more conducive role in economic development। और इससे क्या फर्क पड़ा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यदि आप 1991 से पहले और 1991 के बाद हमारे जीडीपी रेशियो को देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस सब्सटेंशियल चेंज। और बहुत सारे स्टेट वाइज भी 8th प्लान में, 9th प्लान में, 10th प्लान में, 11th and 12th प्लान में जो पर कैपिटा इनकम है, बहुत सारे स्टेट्स के आप देखेंगे उसमें बहुत बदलाव आया है। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रोथ है, यदि हम कंपैरेटिव ग्रोथ को, बिहार की ग्रोथ को देखें, हम 9th प्लान में बिहार की ग्रोथ 4.4% के आसपास थी, और 10th प्लान में 4.7 हुई, 12th प्लान में 12.11 हुई। इट मींस जो स्टेट इससे पहले एक बीमारू स्टेट के कैटेगरी में आते थे, नाउ दे वर डेवलपिंग, दे वर लीडिंग द ग्रोथ
प्रोसेस इन द कंट्री। ये बहुत बड़ा बदलाव आया, ट्रांसफॉर्मेशन था। जो लो इनकम स्टेट्स थे, दे वर रियली फ्लरिशिंग आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। डिस्पैरिटी भी देखने को मिली, बिहार और महाराष्ट्र और हरियाणा और दूसरे स्टेट्स में डिस्पैरिटी तो थी। जो डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम वो भी थोड़ी कम। मेरे पास जो आंकड़े हैं जो मैं यहाँ दिखाने, मैं स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं करना चाहूंगा, बट वो आंकड़े भी हम बहुत बहुत ध्यान से देखते हैं तो वो आप पाएंगे कि उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव है। फॉर एग्जांपल एक आंकड़ा आपके सामने देता हूँ, 2004-2005 में बिहार में जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 7,914, लेकिन यही बढ़ के 2011-12 में 15,268 हो गई, 15,268 हो गई। इसी तरह से हमारे पास हरियाणा की पर कैपिटा इनकम भी है, महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम भी है। आप पाएंगे कि इन स्टेट्स में आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वी कुड फाइंड दैट द पर कैपिटा इनकम इन दीस स्टेट्स हैज शोन एन इंक्रीमेंटल चेंज। सबसे बड़ा चेंज तो हमको जो यदि हम अपने सेक्टरल कंपोजिशन को देखते हैं, यदि हम 1951 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे, 1951 आप पाएंगे तो एग्रीकल्चर यूज्ड टू बी द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन आवर जीडीपी। लेकिन आप जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ गए और उसके बाद की जर्नी को देखे 2002, 2010, 2011-12 के आसपास हम पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो कि 50% के ऊपर हुआ करता था 1951 में, वो उठा के 14-15% पे आ गया। सिमिलरली वन सेक्टर विच वाज वेरी लो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 16% था, जो कि 2010 तक आते आते सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50 के आसपास, 30% के आसपास था, जो बाद में बढ़ते बढ़ते अब 50%, 58-59% के आसपास चला गया, एंड टुडे इट्स अराउंड 57-58%. सो देयर हैज बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज. जिस तरह से ये डिफरेंट सेक्टरल कंपोजिशन बदली है, सर्विस सेक्टर इज प्लेइंग अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट रोल, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं जो 50% के ऊपर था वो काफी कम हो गया, वो लगभग 14-15% के आसपास 2010-11-12 तक हो गया, और आज की तारीख में लगभग 70% के आसपास है. दूसरा बदलाव जो हम देखते हैं, ट्रेड ओपननेस. दिस इज वन, यदि एक इकोनॉमी खुलती है, एक इकोनॉमी ओपन होती है, वो तो उसमें बदलाव आना चाहिए उसकी ट्रेड ओपननेस में. ट्रेड ओपननेस का मतलब होता है यदि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को जोड़ते हैं, उसको जीडीपी से, उस कंट्री की जीडीपी से डिवाइड कर दे, वो हमारी ट्रेड ओपननेस होती है. तो भारत की ट्रेड ओपननेस को भी आप स्टडी करेंगे 1991 से पहले के फेज में और 1991 के बाद के फेज में, आप पाएंगे ह्यूज चेंज इन ट्रेड ओपननेस. और उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमने अपनी बाउंड्रीज को खोला वर्ल्ड के लिए कि आप आइए हमारे यहाँ बिजनेस कीजिए. एट द सेम टाइम हम भी दूसरे लोगों के यहाँ पे बिजनेस करने गए. इट मीन्स द नेशनल बाउंड्रीज वर मोर ओपन फॉर all of us. तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है भारत का कि आप भारत की जो ट्रेड ओपननेस को देखेंगे, there has been a tremendous positive change in trade openness. एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी देखिए तो हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़े, लेकिन उतने नहीं बढ़े, लेकिन इंपोर्ट्स काफी बढ़े क्योंकि हमारा कंजम्पशन डिमांड बहुत ज्यादा थी. यदि आप पिछले कुछ सालों के फिगर देखेंगे, there has been a substantial rise in import, और ट्रेड डेफिसिट जो हमारा है वो हमारे लिए चिंता का विषय रहा है. और एवरेज ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट की देखेंगे बिफोर लिबरलाइजेशन और आफ्टर लिबरलाइजेशन. हम बिफोर लिबरलाइजेशन की बात करें, इट वाज 5.86%, आफ्टर लिबरलाइजेशन इट हैज बीन 6.86%. तो यहाँ भी बेहतर परफॉर्मेंस हमको दिखता है. और अब उसके बाद का जो फिगर है वो लगभग 17% के आसपास का जो हमारा वो डेटा है. तो इट मीन्स दैट देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन दैट पर्टिकुलर एरिया आल्सो. इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से पहले का था और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद का है, उसमें यू विल फाइंड देयर इज अ ह्यूज चेंज इन दैट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास, इवन जो एफडीआई एज अ रेशियो ऑफ जीडीपी देखेंगे, जो जीडीपी यदि एफडीआई को हम जीडीपी रेशियो के साथ में कैलकुलेट करते हैं तो वो भी उसमें भी आप देखेंगे देयर इज अ ट्रेमेंडस चेंज. एंड ये हमारा 1991 की पॉलिसी के बाद में दिस हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट. और सबसे बड़ा चेंज जो हमको फॉरेक्स में आता है, हमारे पास कितना फॉरेक्स रहा है, कितने बिलियन डॉलर्स का फॉरेक्स रहा है. आज की तारीख के जो लेटेस्ट फिगर है, लगभग मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए लगभग
594 के आसपास हमारे पास टोटल फॉरेक्स बिलियन का स्टॉक होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। कुछ समय पहले 600 बिलियंस को क्रॉस किया था, लेकिन बाद में भी घट के लगभग 590-95 के बीच में ये मूवमेंट हो रहा है इसका। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड साइन कि आपके पास इतना फॉरेक्स रिजर्व डॉलर के रूप में आपके पास में है। एक्सटर्नल डेट हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर अस। हमारा जो एक्सटर्नल डेट रहा है वो हमारा प्रॉब्लम रहा है। इवन आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भी हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रॉस टोटल डेट है वो हमारा काफी बढ़ा है। ये हमारे लिए इसके पीछे मैं इस पे थोड़ी 10-15 मिनट बाद इस पे बात करना चाहूंगा। इवन पॉवर्टी रेट्स हम देखते हैं तो पॉवर्टी रेट्स यदि हम कंपेयर करें पॉवर्टी हमारे कंट्री में सोशल सेक्टर की बात करते हैं तो पॉवर्टी हैज बीन ऑन डिक्लाइन, बट in absolute number it is on decline. But when we talk about Gini coefficient and when we talk about disparities, that is a matter of concern for all of us. If you look at the distribution of wealth, if you look at the disparities among different states, तो यहाँ हम पाएंगे कि बहुत ज़्यादा disparities बढ़ी है। Even the wealth का जो distribution है different citizens के बीच में, different states के बीच में, वो भी बहुत alarmingly बढ़ा है। तो that is a matter of concern. एक दूसरा मैटर ऑफ कंसर्न हमारे लिए रहा अनएम्प्लॉयमेंट। इवन ये हमारे लिए चिंता का विषय है। यदि आप पिछले 20-25 साल के फिगर उठा के देख ले, इवन आफ्टर लिबरलाइजेशन हम जो उम्मीद कर रहे थे कि फॉरेन डायरेक्ट इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ खुलेंगी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ राइज है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारे लिए अभी भी चिंता का विषय है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें अभी भी हमारे लिए एक अलार्मिंग पॉइंट है। एक दूसरा है जो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। यदि हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर में कमर्शियल बैंक्स की ग्रोथ की बात करते हैं, यदि हम 1991 के बाद में नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स की जो यूनिट्स है डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट गाँव में, डिफरेंट तहसील्स में जो खुली है, नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स वो उसमें काफी राइज है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके, फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर बहुत सफल रहा है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ जो बैंक्स है, जो बैंक्स का जो एक्सेस है लोगों तक वो काफी हद तक अवेलेबल है। तो ये हमारा कमर्शियल बैंक जिस तरह से गांव तक पहुंचा, जिस तक विलेजेस तक पहुंचा, दैट इज अ प्लस साइन फॉर ऑल ऑफ अस। बैंक क्रेडिट हैज आल्सो बीन अ गुड साइन। यदि हम बैंक क्रेडिट को पिछले सिंस 1991 के बाद देखते हैं तो ये इस पे भी काफी राइज है। द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट बाय बैंक्स, यदि आप इस पे 1991 के बाद फिगर्स को देखेंगे, विल फाइंड देयर हैज बीन अ ट्रेमेंडस राइज इन बैंक क्रेडिट आल्सो। एक चिंता का विषय था, लेकिन अब उसमें हम काफी कंफर्टेबल है। यदि हम 1991 के बाद देखें और 2017-18 तक देखें तो वी वर वरिंग अबाउट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की हम बहुत चिंता थी हमारे लिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। लेकिन जब से बैंक करप्टी कोड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है तो उसके बाद हम देखते हैं कि एनपीए इज अंडर कंट्रोल, और आज की तारीख में वर्तमान स्थिति में ये हमारा जो एनपीए है वो काफी कंट्रोल में है। सोशल सेक्टर में लिटरेसी रेट वी आर वेरी कंफर्टेबल। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ is again a matter of concern. शायद higher education is I don't hesitate to say that higher education is perhaps not the priority of the government. जितना गवर्नमेंट को higher education की तरफ फोकस करना चाहिए in terms of government expenditure, वो हम देखते हैं that is missing. Public sector, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इन हेल्थ इज ऑन राइज। दैट इज अ गुड साइन कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो एजुकेशन पे थोड़ा पहले से बेहतर है। उसका जो राइज हमको दिखता है, दैट इज अ गुड साइन। Another concern is the public health expenditure. Public health, I mean, we have already gone through COVID. I'll talk about COVID later on. We have already gone through the bad times of COVID, and at the time of COVID, before COVID, we were spending only 1.4% of our expenditure of our GDP on health. So that was a very, very meager amount, in terms of other countries. यदि हम दूसरे कंट्री की बात करें, कहीं पे 17%, कहीं पे 18%, health was a priority because spending on health is nothing but caring about a human force, human resources. तो ये हम देखते हैं कि हेल्थ पे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर भारत में बहुत ज्यादा नहीं रहा है। Even after 1991 रिफॉर्म्स के बाद भी शायद सोशल सेक्टर में हेल्थ हैज नेवर बीन द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज द लास्ट 2 बजट्स, आई टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। यदि पिछले 2 बजट्स पे हम जिसमें मैं 10 मिनट बाद बात करूंगा, आप देखेंगे द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट हैज चेंज्ड। फाइन। उसके बाद अनदर फैक्टर विच इज
जो थोड़े बहुत कंफर्टेबल रहे, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमारे यहाँ पहले के मुकाबले में कम हुआ है, बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ हैज बीन एट राइज, ये हमारा एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अब आते हैं प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर sector has been a major cushioning for us. Even during COVID times, we have seen that agriculture sector has saved us. Every agriculture sector has given a big support to the economy. और आज की तारीख में हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो आज भी हमारे पास कहते हैं कि 1.5 से 2 साल का हमारे पास इतना एक्स्ट्रा फूड ग्रेन प्रोडक्शन है कि आने वाले 1.5 से 2 साल हम अपनी पूरी कंट्री को पूरी पॉपुलेशन को फीड कर सकते हैं। ये हमारी ग्रोथ है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आफ्टर 1991। और बहुत बड़ा परिवर्तन आया, हमने बहुत एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो ग्रोथ आपको दिखती है, वी हैव बीन बहुत सारे फैक्टर्स है उसकी तरफ। फॉर एग्जांपल नाउ यदि हम 1991 के बाद के फेज को देखें तो perhaps we have not paid attention on agriculture infrastructure, but last couple of years, 4-5 years, you'll find that we have been paying attention on processing units. We are paying attention on storage पे बहुत focus कर रहे हैं, processing units पे focus कर रहे हैं. So that's a positive change as far as agriculture production is concerned. Irrigation has been the intensity of irrigation में भी enhancement हुआ है, लेकिन there's a point of worry यदि हम sustainable डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, एक तरफ हम इरिगेशन इंटेंसिटी को पॉजिटिव साइन मानते हैं, बट दूसरी तरफ यदि हम डीप स्टडी करें तो पाएंगे कि ये जो इरिगेशन है भारत में, एग्रीकल्चर इंटेंसिटी है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान ग्राउंड वाटर लेवल कर रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल आज on an average 500 से 550 600 फीट नीचे चला गया। इट मींस वी आर एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि यदि हमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जो कि आज हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे पास फूड ग्रेन प्रोडक्शन 1.5 से 2 साल के लिए सरप्लस है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस एग्रीकल्चर को, जिस एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, हमें जरूरत है इसको आगे पीछे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने की, बिकॉज हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सस्टेनेबल बहुत मायनों में नहीं है। सो दैट आई विल फोकस ऑन दिस पॉइंट लेटर ऑन। क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी हमारी बहुत बड़ी है। यदि हम 2004-5 के बाद बात देखें तो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी में एक ट्रिमेंडस राइज आया 2003 के बाद। उसके बाद एक सेकंड उसमें पुश हुआ 2013-14 के बाद में। तो वी हैव सीन कि हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी बढ़ी है, और इरिगेटेड एरिया जो है, जो हमारा टोटल इरिगेटेड एरिया है, उसमें भी हम पाते हैं कि देयर हैज बीन अ ट्रिमेंडस चेंज। सो दीज वर द चेंजेस, एंड कुछ चेंजेस और भी हुए। यदि आपने पढ़ा होगा कि ईज ऑफ बिजनेस जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट कुछ। यदि हर साल के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आप देखेंगे, इंडेक्स को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम पहले से बेहतर हुए। और हम बेसिकली फोकस रहा है कि हमारा हम आगे 2050 तक हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने हमको बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर किया और हमें बुरी तरह से एक्सपोज किया। वो था जब कोविड 2019-20 में कोविड आया, उसने हमारी इकोनॉमी को बहुत बहुत बुरी तरह से एक्सपोज किया। एंड ये कोविड जो है, दैट हैज गॉन बियॉन्ड कलर, बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड रिलीजन, एंड इट हैज गॉन to many nations. It has affected poor, it has affected rich, it has affected urban people, it has affected man, woman, everybody, and its effect could be seen economically, socially, and the way we live our life. इसका impact एक तरह से हमारी पूरी इकोनॉमी पे आया। और हमारे कुछ सेक्टर्स थे जिसको उसने बुरी तरह से डैमेज किया। वन ऑफ द कोर सेक्टर जिसने बुरी तरह से डैमेज किया, दैट वाज एमएसएमई सेक्टर था, जिसमें क्योंकि all the shops, all the business houses were closed, the country has gone through a complete shutdown, और हमारी बहुत सारे मेजर सेक्टर्स थे जिसको उसने बुरी तरह से अफेक्ट किया। हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एविएशन, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। और फर्स्ट वेव जो थी उसने इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया, लेकिन सेकंड जो वेव थी, that was very very harsh as for the life of people were concerned. So that has been the journey of COVID is concerned. लेकिन कोविड को हम एक इकोनॉमिक के स्टूडेंट की नजर से देखें तो कोविड ने हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी को बुरी तरह से डैमेज किया। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में आप देखते हैं कि द हाउसहोल्ड्स कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट, इन द प्रोडक्शन, एंड द प्रोडक्शन आपको रिटर्न देता है, हाउसहोल्ड को रिटर्न देता है, और इस तरह से डिमांड और सप्लाई के जो पैरामीटर्स हैं वो चलते रहते हैं।
लेकिन कोविड सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट कि कोविड-19 ने हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी को बुरी तरह से डैमेज किया, हमारे डिमांड को बुरी तरह से अफेक्ट किया, हमारे सप्लाई पैरामीटर्स को बुरी तरह से अफेक्ट किया. The economy experienced the supply bottlenecks as well as the demand bottlenecks because पूरी की पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई. जब इंडस्ट्री बंद हो गई, लोग घर पे बैठ गए, तो ना तो सप्लाई का, ना तो प्रोडक्शन था, और ना ही लोगों के पास में इनकम के कोई साधन थे. तो इट अफेक्टेड द डिमांड, इट अफेक्टेड द इकोनॉमी ऑन बोथ साइड, डिमांड साइड एंड एज वेल एज द सप्लाई साइड. और ये जो कोविड का जो एक इम्पैक्ट था वो ज्यादा हार्श इसलिए था कि कोविड से जस्ट पहले आप अपनी इकोनॉमी को बहुत ध्यान से देखेंगे, इकोनॉमी had already lost pace. उसका रीजन था डिमोनेटाइजेशन, उसका रीजन था जीएसटी. मैं I'm not talking about, I'm not criticizing GST, I'm not criticizing demonetization, but मुझे तो क्रिटिसाइज करना है, मुझे उसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट पे, जिस तरह से उसको लागू किया गया, जिस तरह से जिस डिफिकल्टीज के साथ में वो लोगों ने उसको बियर किया, दैट वाज समथिंग टू बी लुक्ड आफ्टर. बट एनी हाउ the economy already एक slow down state में थी because of demonetization, because of complexities of GST, और इस तरह से all these factors combined together created supply bottlenecks as well as the demand bottlenecks. और 2020 के आते आते आप you won't imagine हमारी जो इकोनॉमी थी that contracted by 7.3%. और इम्पैक्ट देखिए, इम्पैक्ट पॉवर्टी पे देखिए, इम्पैक्ट उसका इनइक्वालिटीज पे देखिए. आप लगभग 23 करोड़ के आसपास, यदि आप अजीम जी प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट देखेंगे तो लगभग 23 करोड़ लोग इंडियंस ऐसे हैं, दे वर पुश्ड इनटू डीप पॉवर्टी. फाइन. एंड अराउंड 200 मिलियन ऑफ पीपल डिडंट हैव फूड टू ईट. उनके पास फूड नहीं था खाने के लिए. फाइन. और रूरल पॉवर्टी है वो लगभग 15 पॉइंट से बढ़ी, लेकिन इसका जो ज्यादा इम्पैक्ट आया वो अर्बन पॉवर्टी पे आया. अर्बन पॉवर्टी इंक्रीज बाय 20 पॉइंट्स. सो दीज वर द इम्पैक्ट. और दूसरी चीज, जो लोग व्हाइट कॉलर जॉब में थे, आप पाएंगे you'll find there were many people who were engaged into organized sector. Many of them were pushed to, were forced to accept the minimum wages of 375 rupees. वो मनरेगा में चले गए, वो क्योंकि उनके पास जॉब नहीं था, फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, तो उनको अपने सर्वाइवल के लिए when they went back to their villages, they accepted the मनरेगा जॉब, जो कि 375 पर रुपीस पर डे, 375 पर डे के हिसाब से था. और आप पाएंगे ऐसे कितने लोग थे. एज पर अजीम जी प्रेमजी यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट है, लगभग 230 बिलियन लोग ऐसे थे जिन्होंने इस तरह का अपनी 375 पर डे के हिसाब से जॉब को एक्सेप्ट किया. सो दिस हैज बीन द इम्पैक्ट, दिस हैज बीन द सिविरिटी एज पर द कोविड इज कंसर्न. एंड लगभग 14 करोड़ के लोग के आसपास लोग ऐसे थे जिनको अपना जॉब छोड़ना पड़ा. यदि हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखें, उस दौरान में जब कोविड स्टार्ट हुआ उस वक्त हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.5% था, और 2-3 महीने में ये उठा के लगभग 27% के आसपास हो गया. एंड वी ऑल नो the problems of 50 billion migrant workers. These migrant workers didn't have food, these migrant workers didn't have resources to manage. और सबसे बड़ा इम्पैक्ट यदि इस कोविड का आया है तो दैट वाज ऑन इनफॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल सेक्टर वाज वर्स्टली हिट, एंड 90% ऑफ आवर वर्किंग पॉपुलेशन बिलोंग्स टू this informal sector, and this contributes immensely. If you look at the contribution of आप यदि contribution की बात करें informal sector का हमारे GDP में, we all know it's immense. So यदि ये sector बुरी तरह से प्रभावित हुआ तो that was the point of worry for all of us. Another factor which I have already spoken in the beginning, which contributes around 30 to 35%, that is MSME sector. जो हमारी MSME sector है वो बुरी तरह वर्स हुआ और बुरी तरह से अफेक्ट हुआ. और ये MSME सेक्टर की कुछ पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लगभग 94% ऑफ दीज MSMEs आर नॉट रजिस्टर्ड, और बहुत माइक्रो फर्म्स है. 98% ऑफ MSMEs आर द माइक्रो फर्म्स, एंड बहुत मार्जिनल साइज की है, बहुत छोटे साइज की है. जब आप लॉकडाउन करेंगे तो इनका सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से इफेक्ट होगा. इनके पास कैपिटल ज्यादा रहती नहीं है, इनके पास कैश ज्यादा रहता नहीं है. और जब आप MSME सेक्टर को छोटी यूनिट को कोविड के दौरान हमने बंद किया तो इनके पास कैश का बहुत बड़ा तकलीफ हुआ और इनका पूरा का पूरा सप्लाई चेन बिगड़ा. तो ये बहुत, बिकॉज दे सफर्ड सीवियरली बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड कैश
फ्लो, इनके पास कैश फ्लो ही नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि एमएसएमई सेक्टर बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ। और कुछ रिपोर्ट यदि हम पढ़े, जो डलबर्ग की रिपोर्ट है, वो कहती है कि जो भारत में जो मंथली हाउस होल्ड इनकम है वो लगभग 65% से कम हुई। दैट वाज अ सीवियर कॉन्ट्रैक्शन। और स्पेंडिंग पैटर्न में भी बदलाव आया। आप जो पैसा आप अपने जो रूटीन आपका था उसमें बदलाव देखा गया। यू वाज स्पेंडिंग मोर ऑन फूड एंड मेडिसिन, हेल्थ केयर पर स्पेंड कर रहे थे, बिकॉज देयर वाज अ क्वेश्चन कि आप अपनी लाइफ को कैसे बचाएंगे। तो दैट वाज हाउ द थिंग्स वर एट द टाइम ऑफ 2020 ऑनवर्ड्स। यहाँ से अमृत काल की बात चालू हुई, यहाँ से सेल्फ रिलायंट की बात चालू हुई। जिस तरह से ये परिस्थितियों ने भारत को मजबूर किया, जिस तरह की ये सिचुएशन भारत में बनी, गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, वी हैव टू रिवाइव दिस इकोनॉमी एंड वी हैव टू रिवाइव दिस इकोनॉमी नॉट फॉर ओनली कोविड पर्पस, बट we want to build an India which is stronger, which can bear all these shocks even in the future also. यहाँ से सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर भारत की बात चालू हुई जब गवर्नमेंट ने 21 लाख करोड़ का एक पैकेज इंट्रोड्यूस किया। दैट वाज लगभग जो हमारी जीडीपी का लगभग 10% था। और उसका एम क्या था? एम था इकोनॉमी को बचाना, इकोनॉमी में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करना और लोकल फॉर वोकल की बात करना, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, वोकल फॉर लोकल की बात करना। तो ये दैट वाज, और ये पूरा का पूरा सेल्फ रिलायंट का जो पैकेज था, जो आत्मनिर्भर भारत का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट था, वो बेसिकली 5 पिलर्स पे था। पहला पिलर था हमें अपनी इकोनॉमी को एक स्ट्रॉन्ग करना। इकोनॉमी में हमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें क्वांटम ग्रोथ चाहिए, हमें इकोनॉमी में अच्छी खासी ग्रोथ चाहिए। सो दैट वाज द रीजन। और इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे हम बेसिकली गवर्नमेंट का आगे जो अभी आप यदि पूरे इस पूरे ड्राफ्ट को पढ़ेंगे तो फोकस था सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करती है गवर्नमेंट, हम इनइक्वालिटीज को दूर करने की बात करती है। तो पूरा का पूरा फोकस जो गवर्नमेंट था इकोनॉमी को रिवाइव करने का था, किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को इस तरह से बिल्ड करें कि आने वाले पीढ़ियां भारत में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में रहे, एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर में रहे। सेकंड था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें मॉडर्न इंडिया को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है। जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो सेकंड पिलर था दैट वाज इंफ्रास्ट्रक्चर, मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया की जो हमारी नीड्स है उसको फोकस करते हुए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। और तीसरा बहुत बड़ा परिवर्तन, आई अप्रिशिएट दिस थर्ड पॉइंट इज वंडरफुल, वी हैव टू बिल्ड अ सिस्टम। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो 21वीं सदी की हमारी नीड को पूरा करे। हमें गवर्नमेंट ज्यादा नहीं चाहिए, हमें गवर्नेंस ज्यादा चाहिए। इसलिए आप देखेंगे इस पैकेज के बाद में जो पूरा का पूरा फोकस है दैट इज मोर गवर्नेंस, दैट इज ऑन लेस गवर्नमेंट हो, इंटरवेंशंस कम हो, ब्यूरोक्रेसी का रोल बहुत कम हो, लैपटॉपिज्म बहुत कम हो, और मोर गवर्नेंस पे फोकस रहा है। तो दैट हैज बीन अ वंडरफुल पॉइंट, वंडरफुल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सिस्टम। और दूसरा क्या, डेमोक्रेसी। इंडिया इज अ वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी एंड हमारी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है सबको साथ में लेके चलना, सबके विकास की बात करना। हम पार्टिसिपेटरी ग्रोथ की बात करते हैं, हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंक्लूसिव विकास की बात करते हैं। एंड और जब हम इंक्लूसिव विकास की बात करेंगे, हम इस तरह की सब कम्युनिटीज को साथ में लेके चलने की बात करेंगे, तो वो डेमोक्रेसी, वो जो स्ट्रेंथ हमारी कंट्री को मिलेगा उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। सो वी वांटेड हमें इस डेमोक्रेसी को आगे भी बचा के चलना है। यदि हमें 2050 के मॉडल की तरफ जाना है, हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है जो हमारी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है हम इसको इंटैक्ट करें, इसी को लेके आगे बढ़े। एंड थर्ड एंड द फिफ्थ पॉइंट इज फोकस ऑन डिमांड, एलिमिनेटिंग डिमांड एंड सप्लाई बॉटलनेक्स। यदि हमें इकोनॉमी को बचाना है तो हमें डिमांड को डिराइव करना पड़ेगा। हमें डिमांड को इकोनॉमी में डिमांड को जनरेट करना पड़ेगा, और साथ साथ में हमारी जितनी भी सप्लाई बॉटलनेक्स है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो दैट वाज these were the 5 pillars on which the concept of इंडिया के ऑब्जेक्टिव क्या है। यदि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं मिशन के, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव जब ये लॉन्च किया गया तो ऑब्जेक्टिव था भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना 2024-25 तक, एंड वी आर moving towards that।
ठीक है, उसका था जो मेकिंग इंडिया के जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो 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 इस गवर्नमेंट का मेकिंग इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसको और स्ट्रेंथन करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, नए नए जॉब क्रिएट करना, नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से हो, चाहे एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट के माध्यम से हो, चाहे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस करने का हो, हमें उस पर ज्यादा फोकस करना। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि हमें सेल्फ रिलायंट के ऑब्जेक्टिव को मीट करना है, the most important thing is that हमें ease of doing business पे के अलावा, देखिए दो चीजें होती है। इससे पहले हमारा फोकस ease of doing business पे था, अब हमें ease of living पे भी फोकस करना है। यदि आपने कुछ यदि इस गवर्नमेंट के कुछ मोटिव्स को आपने ध्यान से देखा होगा, तो अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं? हम जीडीपी की तो बात करते हैं, हम वेलबींग की बात भी करते हैं। हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है कि हमारी जीडीपी कैसी हो, हैप्पीनेस उसमें कितनी हो, तो वेलबींग की बात करते हैं, तो दैट इज ईज ऑफ लिविंग। हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को किस तरह से प्रमोट करें, तो one of the important objective of self-reliant India is to improve the ease of living and essentially the quality of life also. उसके अलावा हम सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे नहीं, हम ग्लोबल लेवल पे भी अपने सप्लाई चेन के एक हब के रूप में आए। हमारे पास हम we have seen China, how China has emerged and how China has been dominating the whole world. We are not talking about dominating. India is not talking about dominating the world, but we wanted to create a environment. We wanted to create a platform जहाँ पे हम वर्ल्ड के ग्लोबल सप्लाई चेन हब के रूप में जाने जाए। ये बहुत, क्योंकि आईटी में हम बहुत आगे है, इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे इंडिया बहुत आगे है। और आप वर्ल्ड की आप बेस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज देखेंगे, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे आईबीएम हो, कहीं भी आप जाएंगे यू विल फाइंड दैट इंडियंस आर डोमिनेटिंग, इंडियंस आर वर्किंग। सो हम चाहते हैं कि हम इन कंपनीज के लिए या दूसरी कंपनीज के लिए इंडिया में एक सप्लाई चेन हब के रूप में जाना जाए। ये हमारा एक फोकस है आत्मनिर्भर भारत का। और दूसरा चीज, gone are the days when we would depend upon private sector, public sector पे हम बहुत डिपेंडेंसी हो गई। हमने पूरे मॉडल्स को देखे, भारत के विकास के मॉडल को 1990 तक हमने पूरा फोकस पब्लिक सेक्टर पे किया है। उसके बाद हम जब एलपीजी हमने अडॉप्ट किया, हमारा फोकस प्राइवेट सेक्टर पे गया। बट आज भी हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर को जितना हमारी इकोनॉमी में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उतना नहीं मिलती है। कुछ रीजंस है, कुछ शॉर्टकमिंग्स है, कुछ अनसर्टेनिटी है, जिसकी तरफ गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसकी तरफ आत्मनिर्भर भारत का मॉडल काम कर रहा है। एंड मे बी we are going to have a very strong participation between public and private sector soon, जहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर would equally play a very important role। हमारे प्राइवेट सेक्टर की जो कैपेबिलिटीज है उसको हमें इनहांस करना है, बहुत कैपेबिलिटीज है, फाइन। उसके अलावा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत प्रमोट करना है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यदि आप जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की आप ग्रोथ को देखेंगे, कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है उस डेटा को देख के में, तो हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द वन which we need to focus on। और एक चीज और है, हमें लगता है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, यदि हम अपने एक्सपोर्ट को देखते हैं, जिस तरह के एक्सपोर्ट हमारा होना चाहिए था उस तरह का आज भी हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर की ग्रोथ नहीं है। लेकिन हम ग्लोबल मार्केट की नीड्स को देखें तो हमारे पास अभी भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे हम we can be the global market for exports। कौन से सेक्टर? एग्रीकल्चर में हमारे पास बहुत पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का, टेक्सटाइल में हमारे पास बहुत कैपेबिलिटीज है हमारी एक्सपोर्ट की, क्लोथिंग में हमारे पास बहुत कैपेबिलिटीज है एक्सपोर्ट को इनहांस करने की। एंड वी हैव ऑलवेज हैड अ प्लस पॉइंट डोमेन रादर इन ज्वेलरी। तो ये हमारे सेक्टर्स है जहाँ पे हमें फोकस करना है, अपने एक्सपोर्ट को फोकस करने का एक हमारे पास मौका है। उसके अलावा हमें कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे जो हमारे लिए चिंता का विषय है, और जहाँ पे हम इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं यदि हमें भारत को सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ लेके जाना है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ लेके जाना है, तो कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स पे हमें जो हमारी डिपेंडेंसी वर्ल्ड के ऊपर है उस पे कहीं ना कहीं में, और वो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने उस तरफ भी सोचा है कि लास्ट 2 साल के बजट को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो विल फाइंड दैट गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑन दीज लाइंस आल्सो। पहला सेक्टर है डिफेंस। हम बहुत सारा डिफेंस इंपोर्ट करते हैं, इक्विपमेंट्स को बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारा बहुत सारा फॉरेन जाता है। और हेल्थ केयर, जब
कोविड आया तो आप मानेंगे हम 65 to 80% ऑफ आवर हेल्थ केयर नीड्स हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है कि हम आज़ादी के 74-75 साल बाद भी हम इन चीज़ों का बहुत सारा इंपोर्ट हम बाहर से कर रहे हैं। तो वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट, वी नीड टू पुट मोर इन्वेस्टमेंट इनटू दीज इंडस्ट्रीज। ये चाहे डिफेंस हो, चाहे हेल्थ केयर हो, और इनमें कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लागू की है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट अंडर द सेल्फ रिलायंट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके बारे में बताऊंगा। गवर्नमेंट ने एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लागू, PLI जिसको बोलते हैं, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिलता है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोविड-19 के बाद में वी फाइंड कोविड-19 के टाइम पे हम 1.4% अपनी हेल्थ केयर पे स्पेंड करते थे। हमारा जो कंट्रीब्यूशन था, आज की तारीख में हम 2.4% हमारी GDP का हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं। एंड देयर हैज बीन गवर्नमेंट हैज रियलाइज कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें ह्यूमन कैपिटल को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ह्यूमन कैपिटल के नीड्स को फोकस करना पड़ेगा। हेल्थ सेक्टर हैज बीन अ प्राइम सेक्टर एज फार दिस गवर्नमेंट इज कंसर्न। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, यदि आप पिछले कुछ सालों में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखे, रोड्स पे देखे, रेल पे देखे, पावर पे देखे, तो आप पाएंगे कि यस, वी आर बिल्डिंग रोड्स, रेलवे ट्रैक्स आर बीन एक्सपांडेड, डिलीवरी ऑफ पावर इज समथिंग व्हिच गवर्नमेंट इज फोकसिंग ट्रिमेंडसली। तो पिछले आत्मनिर्भर भारत के इस पर्टिकुलर मॉडल में आप देखेंगे फोकस हैज बीन ऑन रोड्स, फोकस हैज बीन ऑन रेलवेज एंड एनहांसमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रेलवे एंड पावर ऑल्सो। एंड मैंने आपसे कहा कि यदि 21 लाख करोड़ के पैकेज में आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने काफी कुछ फोकस किया है MSME सेक्टर को अपग्रेड करने का, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज को डेवलप करने का। तो ये बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट का एक अलार्म, गवर्नमेंट ने एक फोकस और भी रहा है कि गवर्नमेंट नाउ इज फोकसिंग। यदि आप पिछले 2-3 साल 4 साल के गवर्नमेंट के 2-3 साल के मूवमेंट को देखेंगे, प्लान्स को देखेंगे, तो गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन वुमेन एंटरप्राइजेस। उनको लगता है कि व्हेन वुमेन हैज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, यदि हमें ये इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है तो बिना वुमेन के इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बिकॉज शी प्लेज एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल। सो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को पे भी फोकस रहा है। और दूसरा है जो स्वच्छ भारत है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वच्छ भारत में भी हमें अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस करना है, नेशनल हेल्थ मिशन की कैपेबिलिटीज को एनहांस करना है, हमें कैपेबिलिटी प्राइमरी एंड टर्सरी केयर, जो हमारी हेल्थ सिस्टम है, उसको फोकस करना है। तो ये बेसिकली इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये जो सेल्फ आत्मनिर्भर भारत का जो 21 लाख करोड़ का जो पैकेज लॉन्च किया, वो आपके सामने मैंने उसके बारे में आपकी ब्रीफिंग करी। तो उसके बाद हुआ क्या है, अब उसके बाद की स्थिति बताना चाहता हूँ कि वो जब लॉन्च किया गया और आज हम कहाँ खड़े हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी पे आगे 15-20 मिनट में बोलूंगा। टाइम है ना मैम, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। ओके। यदि हम जब इस सेल्फ रिलायंट इंडिया का ये पैकेज लॉन्च किया गया और आज की तारीख में हम देखते हैं कि हमारे 85% जो इंडिकेटर्स है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, ये मार्केट ये जो यदि हम उसको एक असेसमेंट करें तो हमारे 85% जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। 2021 के बाद के जो हमारे इम्प्रूवमेंट, ये डेटा है मार्केट आउटलुक का, जिसने कहा है कि 85% ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स इन इंडिया आफ्टर 1991 हैज शोन एन अपस्विंग। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए। और यदि आप देखें 2021 के बाद, यदि ये जब पैकेज इंट्रोड्यूस किया गया 2021 के बाद में एक राइज दिखा हमें जीएसटी कलेक्शंस में। और यदि आज जो हमारा जीएसटी वॉल्यूम जो कलेक्शन है, और यदि इसको पिछले 2 साल के वॉल्यूम, 2 साल पहले के वॉल्यूम से आप कंपेयर करेंगे, यू फाइंड दैट दिस कलेक्शन, द वॉल्यूम ऑफ जीएसटी कलेक्शन हैज बीन शोइंग अ राइज in terms of its volume। उसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर्स और थे। यदि आप प्री कोविड और आफ्टर कोविड यदि आप देखें, या प्री सेल्फ लैंड, ये आत्मनिर्भर भारत के पहले या आत्मनिर्भर भारत के बाद के जो टाइम को आप कंपेयर करेंगे, तो हमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट दिखता है। कौन कौन से सेक्टर में इंप्रूवमेंट दिखा? हमें कोल प्रोडक्शन में हमें इंप्रूवमेंट दिखा, हमें मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट में हमें इंप्रूवमेंट दिखा, हमें रेलवे फ्रेट
कि ट्रैफिक में हमें इंप्रूवमेंट दिखा, हमें पावर कंजम्पशन में हमें इंप्रूवमेंट दिखा, फ्यूल कंजम्पशन में हमें इंप्रूवमेंट दिखा। और देखिए किसी भी कंट्री में एग्रीकल्चर किस तरह से काम कर रहा है तो उसके लिए आप देखा जाता है फर्टिलाइजर सेल्स, ट्रैक्टर सेल्स, इसमें भी हमें इंप्रूवमेंट दिखा। हमारे कंट्री में इस दौरान पिछले 2-3 साल में ट्रैक्टर्स की सेल बढ़ी, फर्टिलाइजर्स की सेल बढ़ी, सीमेंट प्रोडक्शन में हमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है आज की तारीख में। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन जिसकी तरफ मैं बाद में चाहूंगा, अभी थोड़ी देर में और डिटेल में बात करूंगा, दैट इज यूपीआई वॉल्यूम्स। यूपीआई वॉल्यूम का बढ़ना एक तरफ से हमें एक नया फोकस देता है कि पिछले कुछ सालों में 2-3 साल में ऐसा क्या हुआ कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस हमारे आज इतने ऊपर है कि वर्ल्ड हमसे जानना चाहता है, अमेरिका हमसे पूछता है कि आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस में आपने इस तरह से रिवोल्यूशन कैसे कर दिया। हम यूपीआई ट्रांजैक्शन में, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में वर्ल्ड में सबसे आगे है। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हमने क्या किया, उसके पीछे हमने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी, दैट आई विल फोकस ऑन। और एयर कार्गो का जो वॉल्यूम है वो भी हमारा बढ़ा है। यदि हम पिछले 2 साल में, जब ये अमृत काल की बात करते हैं, अमृत काल के बाद के हम 2 बजट्स पे देखें, यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हम मोटिव्स को देखें, 2000 जो यूनियन बजट 21-22 का आया, उसके बाद 22-23 का, आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। 21-22 के बजट में देयर हैड बीन अ शार्प राइज इन कैपिटल बजट। देखिए जब तक इकोनॉमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर आप नहीं डालेंगे वो इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। और गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ जब आत्मनिर्भर भारत का ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, हमें इकोनॉमी को इससे कोविड से बचाना है और इकोनॉमी को हमें नेक्स्ट जनरेशंस के लिए रेडी करना है, तो हमें इस इकोनॉमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर डालना पड़ेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो मल्टीप्लायर है वो 2.51 के बराबर है, जो नई स्टडीज मैंने अभी देखी है। तो उस वक्त 21-22 में जो कैपिटल बजट है उसमें दैट वाज 5.5 लाख करोड़। और पूरा का पूरा कैपिटल बजट कहाँ पे स्पेंड हो रहा था? हेल्थ एंड वेलबींग। इससे पहले आप भारत की हिस्ट्री देख ले, कभी हेल्थ पे इतनी सोच नहीं थी कि हेल्थ इज सच एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। सडनली हमें लगा कोविड-19 ने जिस तरह से हमारे हेल्थ सेक्टर को एक्सपोज किया, गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि नहीं, हेल्थ सेक्टर इज अ प्रोमिनेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। यदि ह्यूमन रिसोर्सेज को हमें प्रमोट करना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करनी है, हम जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं वो डेमोग्राफिक डिविडेंड तब तक नहीं हमारे लिए फ्रूटफुल होगा जब तक हम उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो 5.5 लाख का करोड़ का हमने एक बजट 21-22 में हमने उसको गवर्नमेंट ने उसके लिए फोकस किया और दैट फोकस वाज ऑन हेल्थ एंड वेलबींग। और दूसरा फोकस जो कि एक परिवर्तन हमें देखने को मिला, दैट वाज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑन financial capital and infrastructure, physical and financial capital and infrastructure। हमें लगा कि नहीं, अब गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास नहीं होगा, हमें विकास को बहुत आगे लेके जाना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट जरूरी है ही, यदि हेल्थ एंड वेलबींग इंपॉर्टेंट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी सोच आई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं पहले भी बोला है कि आप 2-3 साल के बजट को आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देखेंगे तो फाइंड दैट ये गवर्नमेंट बहुत स्पेंड कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, R&D पे बहुत फोकस कर रही है, इनोवेशंस पे बहुत फोकस कर रही है। तो आत्मनिर्भर भारत का जो पूरा का पूरा फोकस है दैट इज ऑन R&D एंड इनोवेशन। हमें ये लगता है कि यदि हमें नई जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए भारत का निर्माण करना है, एक नए भारत का निर्माण करना है, तो उसमें टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी प्रोमिनेंट रोल। बिना टेक्नोलॉजी की चिंता किए, हम नई टेक्नोलॉजी लाए बगैर हमारी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है वो बहुत देर तक काम नहीं आएगी। तो हमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लाने होंगे। और वही कारण है, देखिए आप देखते हैं आज हम किस तरह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वर्ल्ड में लीडर है। तो कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट का तो फोकस रहा है कि जो 5.4 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट इज टुवर्ड्स इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड वो दूसरा मैंने आपसे बताया था कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ये पूरा का पूरा फोकस इस तरफ था। और दूसरी तरफ रोड्स को बनाने में, हाईवेज को बनाने में, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के डेवलपमेंट करने में और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट है, ये कुछ ऐसे एरियाज है जिसमें 5.4 करोड़ का जो पूरा बजट है ये फोकस किया गया है। और एक चीज और, एक फोकस जो हमें देखने को मिलता है that is on skill development. This government is paying lot of focus on skill development. This is obvious, आज हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, हम बात करते हैं कि भारत
भारत में जो पॉपुलेशन है, जो जो एजुकेटेड यूथ की जो पॉपुलेशन है, वो लगभग 16-17 साल से लेके 25-30-35 साल तक की जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन जब भारत इज गोइंग टू बी द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो ये जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यदि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमें असट में बदलना है, if we don't pay attention to this demographic dividend would be a liability on us. We need to convert this liability into an asset, and that could be done through inculcating skills in the youth. हमें यूथ में वो स्किल देना है, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनईपी लागू किया है। इस एनईपी को बहुत आप करीबी से देखेंगे तो फोकस हैज बीन ऑन स्किल डेवलपमेंट। हमें पूरा फोकस इस यूथ में जिस तरह की स्किल चाहिए वो स्किल हमें देनी पड़ेगी। फाइन, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 2022-23 का बजट आया। 2022-23 में आप पाएंगे कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पहले था उस पर और बढ़ोतरी की गई और फोकस एरिया बदले। फोकस एरिया कहाँ गया? डिजिटलाइजेशन पे, डिजिटल बैंकिंग पे फोकस गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस गया, हम टेक्नोलॉजी पे फोकस गया। तो दिस इज बीन इंडिया हैज बीन मीटिंग द गोल्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया वेरी वेरी स्ट्रैटेजिकली। हमने पहले वाले फर्स्ट बजट में हमारा फोकस रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हेल्थ एंड वेलबींग पे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे, इनोवेशन एंड R&D पे। फाइन, और इस वाले बजट में हमारा फोकस किस पे गया? डिजिटलाइजेशन पे, डिजिटल बैंकिंग पे गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे गया। टेक्नोलॉजी is a continuous process। तो टेक्नोलॉजी में भी हमने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस किया, जब हमने बोला कि नहीं, हमें अब ड्रोन टेक्नोलॉजी से को आगे प्रमोट करना पड़ेगा और हमें इस विधि से हम अब स्प्रे करेंगे और एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे। क्रॉप असेसमेंट की बात हमने करी है, डिजिटलाइजेशन की बात करी। सो ये हमारा फोकस रहा है। ये हमारे 2 साल के पूरे बजट को देखें और उसके बाद के बजट को देखें, तो यदि हम प्रोग्रेस को देखते हैं, सेल्फ लैंड जो भारत का, जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है, यदि इस पूरे लास्ट के 4-5 साल, 3-4 साल को देखते हैं, तो देयर हैज बीन अ राइज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ा है, हमारा रोड कंस्ट्रक्शन बढ़ा है। यदि आप नंबर ऑफ रोड्स पर देखें, पर किलोमीटर जो हमारा जो नंबर ऑफ रोड्स दिखते हैं स्टेट में, वो आप देखेंगे तो वो उसमें बहुत राइज हुआ है। फाइन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी बड़ी है। आज हम जिस यूपीआई की बात करते हैं, आज दैट इज अ पॉइंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस कि वी हैव द मैक्सिमम डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द वर्ल्ड। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन, हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है, दैट इज ऑन इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हमारा जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जिसको बोलते हैं IIP, उसमें भी हमारा काफी इंप्रूवमेंट है। एंड इवन 8 कोर इंडेक्स जो होता है हमारा, जो इंप्रूवमेंट वो होता है ICI, उसमें जो बेसिकली हम परफॉर्मेंस देखते हैं 3-4 इंडस्ट्रीज का, स्टील इंडस्ट्री का देखते हैं, सीमेंट का देखते हैं, नेचुरल गैस का देखते हैं, कोल का देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं। ये जो हमारी मेजर इंडस्ट्रीज है, इनका परफॉर्मेंस को जज करते हैं, तो इसमें भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है इनके परफॉर्मेंस में। FDI इनफ्लोज हमारे यहाँ बढ़े हैं, हमारे यहाँ फॉरेक्स रिजर्व बढ़े हैं, हमारी स्टील इंडस्ट्री जो हमारी प्रोमिनेंट, किसी भी कंट्री के लिए प्रोमिनेंट इंडस्ट्री होती है, उसका परफॉर्मेंस भी हमें देखने को मिला है। MSME सेक्टर इज स्टिल, आज भी MSME सेक्टर में आज भी कैश की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी देयर हैज बीन अ साइन ऑफ इंप्रूवमेंट एज फार एज the MSME sector are concerned. Another very very important change which we find is that government is paying a lot of attention on renewable energy. Renewable energy पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है, और गवर्नमेंट का एक है कि 2030 तक हम $1 ट्रिलियन स्पेंड करेंगे टू हैव अ ग्रीन एनर्जी। ये एक बहुत बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का कि ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस करना, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, वी आर कमिटेड टू UN। हम कमिटेड है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करना है। तो उसके पीछे जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है वो है इकोलॉजी, इकोलॉजिकल इनबैलेंसेस, इकोलॉजी को मेंटेन करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन करना, और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें शिफ्ट करना। तो उसमें गवर्नमेंट इज पेइंग लॉट ऑफ अटेंशन। एरिया ऑफ गैप्स कहाँ रहे? यदि हम ये पूरे आत्मनिर्भर भारत के मॉडल को देखें, जो 21 लाख करोड़ का जो सरकार ने लॉन्च किया था, बस एक ही कमी जो मुझे लगती है वो थी कि दिस लिक्विडिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट।
यदि एमएसएमई सेक्टर को कैश की जरूरत है तो वो उसके पास कैश नहीं था, उसके पास बैंक को जाना पड़ेगा, बैंक से वो उसको लोन लेना पड़ेगा, बैंक से डिमांड करना पड़ेगा। तो ये लिक्विड मतलब जो मेजर फोकस क्या था, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी थ्रू क्रेडिट। ये एक छोटा सा ये था, एक शॉर्टकमिंग थी। एंड फोकस वॉज ऑन सप्लाई साइड, मोर फोकस। यदि आप पूरे ये आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फोकस हैज बीन ऑन सप्लाई साइड। आई थिंक दिस हैज निग्लेक्टेड हाउ टू क्रिएट डिमांड, हाउ टू रेज डिमांड इन द मार्केट। एंड इफ डिमांड नहीं बढ़ेगी तो सप्लाई साइड बढ़ाने से कुछ काम नहीं चलेगा। तो दैट हैज बीन द फोकस। अब हमारे चांसेस क्या है, यदि हम बात करते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड टुडे, आज हमारा पोटेंशियल क्या है, आज हमारे पास क्या चांसेस है इंडिया को $5 ट्रिलियन की यदि हमें इकोनॉमी बनाना है, तो हमारे प्लस पॉइंट क्या है। वी हैव अ चीप लेबर इन आवर कंट्री। आज भी हमारे पास चीप लेबर है, आज भी हम बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में ला सकते हैं। हमारे पास बहुत कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है। लाइक आई सेड, वी हैव ए वेरी सॉफ्ट एंड इजी गोइंग डेमोक्रेसी इन द कंट्री। हमारे पास एक बहुत इजी गोइंग डेमोक्रेसी है। हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हम एक ऐसी डेमोक्रेसी में जीते, डेमोक्रेटिक कंट्री में जीते जहाँ पे सबको लेके साथ चलते हैं। हमारे पास फूड स्टॉक बहुत अच्छा है, 1.5 से 2 साल तक का एक्स्ट्रा हमारे पास फूड स्टॉक है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास फॉरेक्स का जो स्टॉक है वो आज $594 बिलियन के आसपास है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और मैंने आपसे पहले कहा कि डेमोक्रेटिक डिविडेंड, हमारे पास यूथ की पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन चाहिए क्या, मुझे इस यूथ को स्किल डेवलप करके इसको एक प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में बदलना है। एंड वी हैव अ बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ये हमारी बहुत बड़ी पहचान है कि भारत में जो डेमोक्रेसी है वो बड़ी है और सहज है, सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, सबको साथ में लेके चलती है। ये जो हमारी इमेज वर्ल्ड में बनी है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज यूक्रेन रशिया वॉर होता है तो आप इंडिया की तरफ देखते हैं, मे बी इंडिया इज गोइंग टू फाइंड सम सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज इंडिया इज अ काइंड ऑफ अ डेमोक्रेसी जो सबके साथ चलता है। एंड व्हाट हैज बीन द स्टैंडिंग ऑफ इंडिया आफ्टर Ukraine-Russia war, you can see that India has been close to America, India has also been close to Russia. So ये जो हमारी ये डिप्लोमेसी है, जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी इंडिया प्ले करता है, उसके लिए बहुत बड़ा कारण है कि we have a biggest democracy in the world. उसके अलावा the way, I mean, it's a remarkable, a point of pride for all of us, the way India is leading in terms of space technology. हमने चंद्रयान 3 का जो एपिसोड है, आप जानते हैं, आई कांग्रेचुलेट यू ऑल बीइंग इंडियंस, एंड दैट्स बीन अ कमेंडेबल जॉब डन बाय आवर साइंटिस्ट। उसके अलावा आज आप देखिए कितने सैटेलाइट भारत, इसरो कितने सैटेलाइट, विदेशी सैटेलाइट को भारत से लॉन्च करता है। सो ये जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारी जो एक पहचान है, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि यस, यदि भारत को आगे जाना है, अमृत काल की बात करते हैं हम, 2050 से उसके बाद की बात करते हैं, तो हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा एक रुतबा है, हमें उसको मेंटेन करना है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी सिस्टम। 2008-9 में जब सब प्राइम क्राइसिस आया, अमेरिकन क्राइसिस आया, अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक है लेमन ब्रदर्स, वो जिस तरह से डूबा, अमेरिकन्स वर ऑन द रोड्स, दे वर स्ट्रगलिंग टू फाइंड फूड, दे वर स्ट्रगलिंग टू मीट देयर बेसिक नीड्स। और ऐसा कहा जा रहा था कि भारत में भी इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन भारत में उसका इम्पैक्ट उतना नहीं आया। उसके दो कारण थे। एक तो आप बचपन से देखते हैं, बचपन से आप जितना कमाते हैं, आप यदि 100 रुपए कमाएंगे तो आप 30-35 रुपए अपनी जेब में संभाल के रखते हैं। तो हमारा सेविंग की जो टेंडेंसी है, जो हमको बचपन से हमको डाली जाती है, दिस इज वेरी वेरी प्लस साइन। और हमारा जो सेविंग रेट है, हमारी जो सेविंग टेंडेंसी है, इससे हमको बचाया। दूसरी तरफ हमारा रेगुलेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। यदि हमें आज एक घर के लिए लोन लेना है, या एक इंडस्ट्री में एमएसएमई सेक्टर में आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं बैंक के पास लोन के लिए जाता हूँ, तो बैंक वुड आस्क फॉर ह्यूज नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज। लेकिन अमेरिका में किसी लेडी को नोज सर्जरी करवानी है, वो बैंक से इमीडिएटली लोन ले सकती है। सो हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, और वही रेगुलेटरी सिस्टम ने हमको बचाया। 2008-9 में सब प्राइम क्राइसिस आए तो इसका इम्पैक्ट हम पर नहीं आया। इवन एशियन टाइगर्स का जो फॉल हुआ 1999 में, जहाँ पे G20 का बनाया गया, G20 का आगमन हुआ, वहां भी आप देखेंगे कि हमारा रेगुलेटरी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था, उसने हमको बचाया उसमें। So India is, these are the plus points हमारी ये बहुत बड़े
पोटेंशियल है। यदि हम 5 ट्रिलियन डॉलर करेंसी की बात करते हैं तो चीप लेबर, इन्वायरमेंट, कैपिटल, डेमोग्राफिक डिविडेंड, फूड प्रोडक्शन, ये हमारी बहुत बड़ी एक क्वालिटी है हमारी। अब सवाल उठता है कि हमारे चैलेंजेस क्या है, हमें कहाँ क्या करना पड़ेगा। यदि हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाना है तो हमारे चैलेंजेस क्या है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट के भरोसे हम अपना विकास नहीं कर सकते। आज भी जो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जितना होना चाहिए उतना नहीं है। हमें बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। हमें अपने एक्सपोर्ट जीडीपी रेशो को बढ़ाना पड़ेगा। हमारा जो एक्सपोर्ट जीडीपी रेशो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। हमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिव देने पड़ेंगे। हमें एक्सपोर्ट जीडीपी रेशो को बढ़ाना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर प्रॉब्लम विच इंडिया इज फेसिंग। तो कहीं ना कहीं हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए भी सोचना पड़ेगा, और जब एक्सपोर्ट सेक्टर बढ़ेगा तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज भी हमारे थोड़े कम होंगे। इनइक्वालिटीज, पॉवर्टी, यदि आप 1951 से देखिए आज तक 12th प्लान में भी वी वर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ। तो हमारी जो इनइक्वालिटीज है ये हमारे लिए हमेशा से एक तकलीफ। भारत का जो मॉडल रहा है, चाहे वो लेबर इंसेंटिव मॉडल हो, चाहे वो उसके बाद हमने जो भी मॉडल फॉलो किया हो, कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज हैज बीन एन अटैचमेंट टू ऑल दीज मॉडल्स। तो कहीं ना कहीं हमें इनइक्वालिटीज को कम करना पड़ेगा। और फोकस किस पे करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा कैपिटल फॉर्मेशन, फोकस करना पड़ेगा डेवलपमेंट फॉर ऑल, और क्रिएट करनी पड़ेगी डिमांड। हमें मार्केट में डिमांड को क्रिएट करना पड़ेगा। और क्वालिटी एजुकेशन इज अनदर फैक्टर। यदि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वी नीड टू फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन। और हम एनईपी में बेसिकली एनईपी इज वन ऑफ द को डायरेक्शन। यदि हम एनईपी को बहुत ध्यान से देखें, फोकस इज ऑन क्वालिटी एजुकेशन। हेल्थ केयर एक हमारा ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वेल न्यूट्रिशन है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी थोड़ा बहुत हमें और ध्यान देना। एक चीज और हमारे लिए पॉइंट ऑफ वरी है जिसको मैं बात करना चाहूंगा। हमारा जो एग्रीकल्चर में जो शेयर है, श्रिंकिंग शेयर है, वो बहुत कम है। यदि हम 1951 की बात करें और आज जो हमारा शेयर है इतना कम हो चला है। आज भी हमें जरूरत है प्रोसेसिंग यूनिट्स की, आज भी हमें जरूरत है स्टोरेज हाउसेस की जरूरत है। मार्केट एक्सेस हमारे यहाँ बहुत वीक है। मार्केट एक्सेस जिस तरह का होना चाहिए था तो वो एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूसिंग। यदि आप एग्रीकल्चर सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट को देखेंगे, वो एग्रीकल्चर सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रहा है, लेकिन वो जो रिड्यूस हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी उन लोगों को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है। और 2 पॉइंट और बोलूंगा, उसके बाद आई वुड लाइक टू स्टॉप। वन इज इंडिया needs land reforms. India needs land reform. Land reforms का मतलब होता है, when we talk about land, talking about ownership of land, talking about tenancy of land, talking about distribution of land. हमें अब land reforms चाहिए। यदि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, यदि हमें इंडस्ट्रीज को सस्ती लैंड देनी है, हम चाहते हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज बढ़े, तो कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है। इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्ग लैंड रिफॉर्म्स एट दिस टाइम। और दूसरी तरफ लेबर रिफॉर्म्स आर ऑल्सो अ नीड ऑफ द आवर। यदि हमें लेबर रिफॉर्म्स इस वक्त हमें चाहिए, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ बैलेंस between the interests of workers at the same time interests of business also. If we need to have a balance between interests of business and interests of workers, then we need a very conducive set of economic labor reforms. So India, if we are thinking of making India a third largest economy by 2050 onwards, so we need to really focus on some of the important things, and those things are going to really play an important role. उसके अलावा हमें कहीं ना कहीं as an economist I feel that there's a heavy pressure on population. हमारी जो population है, कोई I normally see that our politicians do not talk about that, but as an economist I really feel bad. Now it's high time that ये जो हमारा पॉपुलेशन प्रेशर है, कहीं ना कहीं इसकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई पॉलिसी होनी चाहिए विद रिगार्ड टू पॉपुलेशन ऑल्सो। एंड एवरी स्टेट, यदि आप ग्रोथ की बात करते हैं, आप यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फिस्कल कंसोलिडेशन की जरूरत पड़ती है। आप एक्सपेंडिचर करते जाएंगे और आपका फिस्कल कंसोलिडेशन नहीं होगा, तो आपको ग्रोथ करना, आपको डेवलपमेंट करना, तो कहीं ना कहीं आपको फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। और
बैंक्स का एक रोल होता है। देखिए इकोनॉमी में बैंक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना, रिसोर्स को मोबिलाइज करके इंडस्ट्रीज को देना। यदि क्रेडिट एक्सपांशन नहीं हो, बैंक यदि बोलेंगे कि हमारा एनपीए बढ़ जाएगा, हम क्रेडिट एक्सपांशन नहीं करेंगे तो उससे इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। हमें कहीं ना कहीं क्रेडिट एक्सपांशन की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। बैंक्स हैज टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जो हमारा जो इंपोर्ट इक्विपमेंट्स है, चाहे वो रशिया से हो, चाहे यूएस से हो, चाहे इजराइल से हो या फ्रांस से हो, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। एंड दैट इज व्हाई आप देखिए कि लास्ट के 2 बजट में हम डिफेंस में भी 100% इक्विटी की बात कर रहे हैं। आपने पिछले 2 साल के बजट में देखा होगा तो हम 100% इक्विटी की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है भारत की नीति में कि हमें इंपोर्ट्स को रोकना है। एज फॉर डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना। लेकिन इससे कहीं ज्यादा हमारे लिए चिंता का विषय है जब हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे बहुत है, वो हमारी फार्मा प्रोडक्ट्स पे बहुत है। हम बहुत सारे फार्मा प्रोडक्ट्स आज की तारीख में चाइना से मंगवाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसकी तरफ ध्यान देना होगा। नाउ व्हाट आर द लेसन्स फॉर इंडिया? हमें अपनी एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी को बढ़ाना होगा। आज तक हम वी डोंट हैव अ सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड जो हमारे जिसको बोल इंडिया डजंट हैव India never had export dependency on any country। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमें एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी मीन दूसरे कंट्री हमारे ऊपर निर्भर हो, ये हमें बढ़ाना होगा। जब तक दूसरा कंट्री हमारे ऊपर निर्भर नहीं होगा तो हमारी एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ेगी नहीं। और हमारे आगे वाले विकास के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़े। कुछ कंट्री ऐसे हो जिनको लगे कि नहीं हमें ये सामान मंगवाना है तो इंडिया से ही मिल पाएगा। वी हैव टू enhance our export dependency। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी जो मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा तब तक नहीं चल पाएगा जब तक हम जो चीज चाइना से मंगवाते हैं वो कहीं ना कहीं हम अपने कंट्री में इंडिजिनस प्रोड्यूस नहीं करें। तो अब हमें 2-4 पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है। हमें वी नीड एक्सपोर्ट ग्रोथ। एक्सपोर्ट जो हमारी ग्रोथ है, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो वी नीड इंसेंटिव्स। हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को इंसेंटिव्स की जरूरत है। जीएसटी है, लेकिन जीएसटी जो वन टैक्स वन नेशन की जो बात कर रहे थे, नीड टू बी सिंप्लीफाइड। नाउ वी नीड विद मिनिमम टैक्स स्लैब। हमारे मिनिमम टैक्स स्लैब होने चाहिए। हम 8%, 16%, 24%, 32%, हम कहीं ना कहीं आप बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हो जीएसटी को बहुत सिंपल बनाना चाहिए आपको। यदि हम एक इजी गोइंग सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसपे इकोनॉमी बहुत स्मूथली मूव करे तो वी नीड जीएसटी विद मिनिमम टैक्स स्लैब। और ये जीएसटी काउंसिल को आगे पीछे सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि नहीं, इफ इंडिया हैज टू ग्रो, इफ बिजनेस सेक्टर हैज टू रियली, प्राइवेट सेक्टर को यदि आप प्रमोट करना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर नीड्स मिनिमम टैक्स स्लैब्स इन जीएसटी। तो यहाँ भी अपने को सोचना पड़ेगा। और फिस्कल स्टिमुलस की बहुत जरूरत है। कभी कभी हमें लगता है कि मॉनेटरी इंटरवेंशंस हमारे सॉल्यूशंस को ढूंढ लेंगे। हमने देखा कि रेपो रेट पे बहुत बार, अभी टाइम नहीं है मैं रेपो रेट का बात करने के लिए, रेपो रेट में इंटरवेंशंस आप देखें कि पिछले कुछ सालों में बहुत बार हुआ है। तो मुझे लगता है कि रेपो रेट इंटरवेंशन से भी जरूरी है तो कहीं ना कहीं फिस्कल इंटरवेंशन भी बहुत जरूरी थे जिसकी तरफ गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तो with these words I'll say that India is I'll just sum up my things. It looks good, the kind of changes which India had made in the past, the kind of policy implications India is following these days. I think we have a very very bright future, and I feel that there are certain areas where India has to look forward to. बहुत बड़ी बात जो तारीफ जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ कि इंडिया को रियलाइज हुआ है कि नहीं, आगे वाला जो ग्रोथ है वो इनोवेशंस पे बेस्ड है, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्रोथ है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस्ड है। और हमें यदि आगे बढ़ना है तो Indian democracy, Indian diplomacy is going to play a very very major role in that. So thank you so much for this lecture, and thanks ma'am. Thank you. Thank you so much, sir. I don't think there would be any question, but still I would like to ask the participant if there are any questions they may ask. Self-reliant education sector. Yeah, somebody is asking me why education sector is sector. Yes, government is working. Government ने NEP लॉन्च किया है। NEP का असर एकदम नहीं आएगा, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और मुझे लगता है कि NEP का जो विजन है वो कुछ इस तरह है कि we improve the level of our education, quality education की तरफ बात करें। यदि आप NEP का आपने बहुत गौर से देखी हो तो NEP ऐसा नहीं है कि आज लॉन्च करिए और कल से चेंज आ जाएगा। बट मुझे लगता है कि नीड
अब मुझे लगता है कि there's a need to push more money, more government expenditure in education. और प्राइवेटाइजेशन आप यदि एजुकेशन का कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग होनी चाहिए, बिकॉज जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के एजुकेशन को अवेल कर पाए, तो कहीं ना कहीं कुछ मॉनिटरिंग चाहिए। यदि आप प्राइवेट सेक्टर को आप प्रमोट कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी इंश्योर कीजिए कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। और इवन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज में ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज के साथ में बहुत ज्यादा इंटरवेंशंस नहीं होना चाहिए, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो। तो आई थिंक these are certain things on which if government really focuses on, then maybe the standard of education would improve. Very well explained, sir. I think it was such an immense energy that you have put in your wonderful deliberation. और भारत की जिस तरह से अपने आर्थिक ऐतिहासिक यात्रा का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से हमारे जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही एक फ्रूटफुल लर्निंग का सेशन ये रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने कुछ चीजों को जो यहाँ पे हाईलाइट किया, आई थिंक पूरे आपने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को एक जर्नी के रूप में यहाँ पे बताया है। इट इज कमेंडेबल सर। From globalization, we're moving to localization, from minimum government to good governance to gender equality. Then we can say it is not GDP but green GDP. बहुत सारे G को लेकर भी हम चल रहे हैं। आपने हर एक पृष्ठभूमि को सर यहाँ पे कवर किया है। I would like Dr. Anjali Singh to please extend the vote of ask the concerned person to extend the vote of thanks. Yes, ma'am. I think I can see this, I can feel that this lecture series is heading towards its end with flying colors. So I would like to extend my gratefulness towards the speakers who not only enriched our knowledge quotient but also remained with us through the journey. Especially Professor Panda, Professor Ghosh and Madam, and all the faculty from different universities and states were with us through this journey. So this is a very great experience. And sir, I would like to draw your attention towards the language interpreter that we have. They were continuously translating or converting your lecture in sign language. So I would like to thank them also, because they were very patiently doing their job. And now, without taking too much time, I would like to ask ma'am if she want to say something. That is all, I think so. Okay. So now, now I would like to request Mrs. Manorama Shukla to kindly come for vote of thanks. Thank you, ma'am. सभी को नमस्कार सर। हम सबसे पहले हम थैंक यू बोलना चाहते हैं वाइस चांसलर सर का, कि सर की अनुमति के कारण ही हम जुड़ पाए अमृतकाल पथ में @100 से। और हम अनामिका मैम का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि किसी कार्य को परमिट करना और उसका संचालित करना दोनों में बहुत अंतर है। तो हम मैम को हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं। सर, आपके लेक्चर में कहीं ऐसा नहीं रहा कि कोई पॉइंट मिस हुआ हो, या जो हमारे दिमाग में करंट में भी नहीं था कि हम अपनी इकोनॉमी को या भारत को किन किन पॉइंट से आगे ले जा सकते हैं। सर, समय बहुत कम और ये लेक्चर तो कम से कम 4-5 घंटे में प्रॉपर तरीके से होता। मैं धन्यवाद भी बहुत कम समय में सर मैं नोट कर रही थी कि मैं किन किन पॉइंट को सर मैं आपको हाईलाइट करके धन्यवाद दूंगी। सर, मैंने बीच में ही पेन रख दिया। इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ बचा ही नहीं है सर, कोई टॉपिक बचा ही नहीं है जिसके लिए मैं नोट करूं, मैं आपको धन्यवाद दूं। फिर भी सर, जैसे आपने डेमोक्रेसी को सर हाईलाइट किया, हमारे यूथ को हाईलाइट किया, और जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस सर आपने बताया वो बहुत हेल्पफुल था। मैं इकोनॉमिक्स की हूँ सर, और मेरा फील्ड रिसर्च फील्ड सर मेरा MSME है। आपने उसको भी कवर किया सर, मुझे और ज्यादा हेल्पफुल लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सर, कुछ बचा ही नहीं, कोई पॉइंट नहीं बचा सर। मैं इतना लिखी हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि आपको कौन सा पॉइंट छोड़ूं और किस पे आपको सर। और बहुत अच्छा लगा इजीली तरीके से
आपने समझाया, आप जैसी उम्मीद थी उससे सर आपने बहुत अच्छे से समझाया। हमें ऐसा लगा कि हम अभी भी स्कूल से ही टीच हो रहे हैं, हम तो एटलीस्ट सर हम हुए। और मैं सर प्रोग्राम की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, R.K. सिन्हा सर को और अभिषेक पांडे सर को। और किसी भी प्रोग्राम को अगर बेहतर तरीके से पूरे टाइम संचालन में उसको रखना है, प्रोग्राम अच्छा करना है, तो हमारी अंजलि मैम को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी बिना अनुमति के या उनके बिना प्रेजेंस के हम अपने को बहुत ज्यादा अच्छा कैसे करेंगे। हमें ये था कि मैम प्रेजेंट हैं तो हमें धन्यवाद ज्ञापन देना, उसके लिए मैं तैयारी कर लूँ। तो सभी को धन्यवाद और नमस्कार सर, बहुत हेल्पफुल लेक्चर था आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Thank you so much. Thank you so much. I also would like to extend thanks to you all for being there. और मुझे इतने टाइम तक आपने झेला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. No, sir, it was really wonderful. And if we have such eminent speakers, then definitely India is self-reliant right now. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you.